Good morning, student. Good morning, student. Yesterday, I explained the chapter "The Flying Together" and its summary. And now, the turn has come for the question answer as a revision work. At first, the first question is, where did the geese live? वो पक्षी लोग थे, geese लोग थे, वो कहाँ रहते थे? So you know very well the answer of this question. The geese live in a leafy branch of a tree and in a deep forest. You know very well, because I have already written the answer of this chapter. And the second question is, why did the old bird advise the other bird to destroy the creeper? Why did the old bird advise? उस पुराने बूढ़े जो पक्षी ने क्यों सलाह दी थी दूसरे पक्षियों को कि भाई इसे क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो? You know very well that the creeper is because in the beginning time the creeper was very small, and it can be ruined, it can be finished easily. But the time grow, it become hard as a rope, and nobody can harm it. So in the beginning the old world advised that any hunter will come and climb the tree easily, but they don't follow their advice and repent at last. You know very well, I told all this story yesterday. The next question is, why did the geese cry help help? जो geese क्यों चिल्लाए मदद करो मदद करो? Because they were trapped by the hunter. क्योंकि वो हंटर के द्वारा जाल में फंस गए थे वो लोग सब, इसलिए वो चिल्ला रहे थे मदद करो मदद करो. The next question is, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर ने क्या करा? What did the hunter do? हंटर ने क्या करा जब he thought, उसने सोचा that the geese were dead, कि वो सब पक्षी जो हैं मर गए हैं. Then at first the answer of the question you know very well, but I start something from beginning, that when the hunter came and trapped on spread their net at the top of the tree where the geese live. Then after in the evening he returned and find all the world dead, because the geese were pretended to be dead, and he throw one by one on the ground. उसने एक एक करके उन लोगों को फेंकना नीचे शुरू कर दिया मरे हुए समझ के. फिर 5 क्वेश्चन, व्हाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड? उन्होंने मरे हुए होने का बहाना क्यों बनाया? क्यों मरे हुए होने का? बिकॉज द हंटर थिंक दैट they will be the hunter found that the geese were dead and throw them one by one, and at last when all their friends on the will lying on the ground, then they flew मतलब fly. Okay. Next, last question. Describe one incident when you got in a trouble because you didn't do your work on time. ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट व्यू. कि डिस्क्राइब वन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट के बारे में आप बताएं, एक घटना के बारे में बताएं. व्हेन यू गॉट इन अ ट्रबल, जब आप परेशानी में हो गए. बिकॉज क्योंकि यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, क्योंकि आपने कोई काम समय पे नहीं किया. ऐसे भी आप कोई भी इसमें अपनी पर्सनल इंसिडेंट ले सकते हैं कि आप कब किस समस्या में पड़े थे और आपने मतलब काम नहीं करा. कुछ भी ले सकते हैं इसमें आप, जब आप ट्रबल में फंसे हो. क्यों? जब आपने टाइम पे काम नहीं करा. जैसे यू विल पनिश्ड बाय योर टीचर बिकॉज यू डोंट डू योर होमवर्क इन राइट टाइम. आपके टीचर ने पनिश करा, आपने काम टाइम पे नहीं करा. आप समय पे नहीं उठे, यू डोंट गेट अप एट अ टाइम, राइट टाइम, सो यू बिकम लेट टू रीच द स्कूल. इस तरीके के मतलब जो भी आपकी हो, इट इज़ योर पर्सनल व्यू to describe the incident when you got in a trouble because you didn't do your homework on time. Next, remember one thing, my dear student, don't write on your book. इसे एज ए रिवीजन वर्क में नोटबुक में नोट कर लेना. क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन.
and the rest of the material you think in a mind only. Learn. State whether the following statement are true or false. ये जो statements हैं इनको आपको true false करना है और आप you were looking on the screen. I have already write the answer of the question. So the first is the tree was the house of a flock of parrot. जो पेड़ था वो घर था तो पैरटों के फ्लॉक का झुंड का करता यहाँ पे पैरट रहते थे नहीं गीस रहते थे तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द वाइस ओल्ड वर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय. जो पुराना बूढ़ा इंटेलिजेंट जो पक्षी था गीस था वो क्रीपर को ख़त्म करना चाहता था शुरू में इन द बिगनिंग. सो दैट इज़ राइट ट्रू है क्योंकि इसका उसने शुरू में ही कहा था वार्निंग दी थी थे फिनिश कर दो अदरवाइज यू विल रिपेंट. The next is the hunter climbed the tree with the help of ladder. जो हंटर था वो क्लाइम माने चढ़ा. वन थिंग माई डियर स्टूडेंट डोंट मतलब रटने की आदत नहीं डालें. आप एट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ एनीथिंग चाहे वो इसका आप समझे थे. रटेंगे तो मीन्स बेकार है आपका. समझे इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी मत बनाना. समझे कि क्या मीन्स आ रहा है इसमें. द हंटर क्लाइम द ट्री. हंटर क्लाइम माने चढ़ा पेड़ पे विद द हेल्प ऑफ लैडर. किसकी मदद से. लैडर मीन्स होता है सीढ़ी की मदद से चढ़ा. सीढ़ी की मदद से चढ़ा नो फॉल्स है. किसकी मदद से चढ़ा. हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ क्रीपर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन काट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू बी. जब वो मूर्ख पक्षी फंस गए थे जाल में तब वो रोने लगे. यस ट्रू. क्राई दे विल क्राई हेल्प 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 इस तरीके से वो चीखने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उन लोगों की मदद की एस्केप माने बच निकलने में. ट्रू है. ओके. नाउ दैट इज नेक्स्ट स्टोरी इंक्लूड इन दिस चैप्टर. लिसन द फॉलोइंग पैराग्राफ. द ant and the dog. At first I read this paragraph. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled on to its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at the moment, a friend dog flew by. She saw that the tiny ant was drawing and quickly flew to a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she coaxed and flew away, adapted from as a fable. ये एक छोटी सी फैबल है. फैबल क्या होता है. इसमें एनिमल्स स्टोरी होती है. एनिमल्स स्टोरी होती है एंड गिविंग मैसेज गिविंग वाली स्टोरी होती है जो कि मैसेज देती है. तो ऑन आई एक्सप्लेन कि ऑन हिज वे होम अपने घर लौटते हुए एंड आंट सा स्पार्कलिंग फाउंटेन. एक आंट चीटी ने देखा था एक अच्छा बहुत चमकता हुआ फाउंटेन. ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल. वो उसकी रेंगती हुई गई हल्के हल्के इसकी दीवारों की तरफ टू टेक अ क्लोजर लुक कि पास से दिखने में कैसा लगता है. सडनली ही स्लिप्ड. अचानक वो रपक गई. इसका पैर रपक गया. कुछ भी कह सकते हैं. स्लिप माने रपकना होता है. एंड फेल इनटू द वाटर. पानी में गिर गई. ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड. वो डर गई. एंड वेव ही लेग इन एयर. हवा में पैर को उछालने लगी. हेल्प हेल्प आई कांट स्विम. मुझे तैर नहीं सकती हूँ मैं. मेरी मदद करो. ही क्राइड. लकली वो चिल्ला रही थी तभी उसके लक से जस्ट एट द मोमेंट उसी क्षण अ फ्रेंडली डॉग फ्लू आई. वहाँ से एक डॉग भागता उड़ा उड़ा मतलब वहाँ से गुजर रहा था. शीशा
that the tiny ant while drowning quickly flew into the nearby tree. सीसा उसने देखा कि एक छोटी सी आंट है डूब रही है पानी में। सी पुल्ड ऑफ ए लीफ, तभी वो अचानक यहाँ ऊपर भी है। सी सा दैट टिनी आंट बाय ड्रॉनिंग, डूब रही है, एंड क्विकली फ्लू टू नियर बाई ट्री, पास के एक वो पेड़ पे गया जल्दी से। सी पुल्ड ऑफ अ लीफ, उसने एक पत्ता, लीफ माने पत्ती तोड़ी, एंड लेट इट ग्लाइड डाउन ऑन द आंट, और आंट के पास से डाल दिया, मतलब फेंक दिया, जिस पे चढ़ के वो आ जाए। हेयर यू आर, सी कोस एंड फ्लू अवे, वो उसके सहारे बाहर आ गई और वो उड़ के चला गया। तो द मैसेज दैट गिव फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके, so some other question downstairs, and the first question is, why do you think the dog helped the ant? why do you think, आप क्यों सोचते हैं कि डॉग ने मदद की आंट की? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how do you think the ant fell on the finding the leaf, and have you ever been trouble like ant, did anyone help? ये थर्ड क्वेश्चन पर्सनल है, तो यू विल डू, ओके, लर्न कर लेना ओनली। यहाँ पे लेट्स टॉक में आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग, यहाँ कुछ अब जो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है, एक बार रिवाइज। ओके, कॉपी पे डोंट राइट ऑन योर नोटबुक। वर्क इन अ पेयर, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग ही डज, अपने दोस्त से आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए जो भी वो करता है। यूज क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, वन इन टेन फॉर यू। और इन जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वेयर माने कहाँ, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, ये जो वर्ड हैं इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन करिए। और ए वन इज रिटर्न फॉर यू, एक आपके लिए दिया हुआ है, वैसे सभी दिए हुए हैं, मैंने कर लिए हैं, लेकिन आप देखें। एंड हेयर इज अ डिस्कस बिटवीन अनु एंड अमित, वन इज गर्ल एंड वन इज बॉय, यू नो वेरी वेल। अनु एंड अमित इज डिस्कसिंग हेयर, एंड लेट्स सी। अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैंने टीवी शाम को, मतलब देख, आई वॉच में देखती हूँ टीवी, इन द इवनिंग शाम को। अमित, व्हेन डू यू, अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? जब अनु ने आंसर दिया तो क्वेश्चन भी होगा, कि क्वेश्चन अमित ने ये करा था कि आप कब टीवी देखती हैं, कब आया, व्हेन डू यू वॉच टीवी, व्हेन डू यू वॉच टीवी, देन अनु रिप्लाइड, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। ऐसे ही ये फर्स्ट है, यहाँ पे अनु अमित के, आई प्ले गेम, मैं गेम खेलती हूँ। तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलती हैं, व्हाट डू यू प्ले मीन्स आप क्या खेलती हैं, तभी अनु ने आंसर दिया, आई प्ले गेम। नेक्स्ट, अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प, मैं स्टैम्प इकट्ठे करती हूँ, स्टैम्प। तो व्हाट डू यू कलेक्ट, क्वेश्चन क्या होगा अमित का, व्हाट डू यू कलेक्ट, आप क्या इकट्ठी करती हैं? तो अनु आंसर, आई कलेक्ट स्टैम्प। अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं मैदान में खेलती हूँ, ग्राउंड में। कहाँ खेलती हैं, तभी इसने आंसर दिया, आई प्ले इन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन, वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलती हैं? फिर अनु, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे को मैं शॉपिंग पे जाती हूँ। तो अमित, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, ऑन संडे। ओके, हेयर द मेन थिंग, हाउ टू मेक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आप लोगों ने, यू नोटिस दैट हाउ वी मेक द क्वेश्चन, हेयर द डिस्कशन अमित एंड अनु, and Anu Amit asked the question and Anu replied unreplied. Okay. The next question is, answer these question about yourself. इनमें क्वेश्चन आप अपने डिटेल भरें, पर्सनल डिटेल, जैसे कि फर्स्ट इज, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। सेकंड, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज में आप बात करते हैं। थर्ड इज, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। फोर्थ, विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका मन पसंदीदा खाना कौन सा है। एंड नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। सिक्स,
विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, किस देश से आप संबंध रखते हैं, किस देश के हैं आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, सोने आप कब जाते हैं, स्लीप को। एंड लास्ट, व्हाई डू यू थिंक ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं। वंस मोर, एक बार फिर बताते हैं एक बार इन्हें। फर्स्ट इज व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। सेकंड, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज में आप बोलते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। विच इज योर फेवरेट फूड, आपका मनपसंद खाना कौन सा है। जैसे बच्चों का होता है बर्गर है, जंक फूड है, या दाल चावल है, चीज़ है, चिकन्स है, तो आपको विच इज़ योर फेवरेट फूड कौन सा है। वेयर डू यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, आप कहीं कुछ कहते हैं कि पिकनिक को, रियल इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करें इसमें। ओके। नेक्स्ट इज विच कंट्री डू यू बिलोंग, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, मोस्टली इंडिया। एंड व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने कब जाते हैं, तो आप अपना एक्चुअल टाइम बताएं। एंड वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं, बिकॉज मिल्क हैज़ अ ग्रेट न्यूट्रिएंट्स एंड लॉट ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। ओके, आपके इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज, ये ऐसे रिवीजन वर्क करिए, करना नहीं है, सिर्फ आपको यू विल ओनली डू द क्वेश्चन आंसर एज अ रिवीजन वर्क, क्वेश्चन आंसर करने हैं बस आपको। बाकी ये सब आपको नोट देखना है। द वर्ड इन द क्लाउड, यहाँ क्लाउड दिए हैं 5। डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, इसमें एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, आई टोल्ड यू इन द क्लास दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो समथिंग और समवन इन द स्टोरी, इस स्टोरी में। नेम देम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड, नेम सेंटेंस योर ओन विद द वर्ड गिवन इन द क्लाउड, जो वर्ड दिए हैं आपको उनसे सेंटेंस बनाने हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है वाइस, तो इसमें आप कहते माई फादर इज अ वाइस मैन, मेरे पिताजी बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आई एम वेरी वाइज, माई सिस्टर इज वेरी वाइज, माई मदर इज वेरी वाइज, माई फ्रेंड इज वेरी वाइज, कुछ भी, वट एवर। द नेक्स्ट इज केयरलेस, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, लेजी, जो काम को टाइम पे नहीं करता हो। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, यू आर वेरी केयरलेस, आई एम वेरी केयरलेस, अमित इज वेरी केयरलेस, सीता इज वेरी केयरलेस, और वॉचमैन इज वेरी केयरलेस, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, पतला और मजबूत, कुछ भी कह सकते हैं। नाउ थिक एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी इज एडमायरेबल टूडे, ये तो हार्ड हो गया, कठिन। इस तरीके कह सकते हैं, रवि हैज अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग, रवि थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, सिंपली। फुलिश, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, मूर्ख को कोई भी आप सेंटेंस पॉइंट ऑफ कर सकते हैं। मूर्ख जैसे कि रमेश इज अ फुलिश पर्सन, रमेश इज अ फुलिश पर्सन, इस तरीके से वी फाइंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके। टेल, टॉल, सॉरी टेल नहीं, टॉल, टॉल मीन्स लंबा। तो अमिताभ बच्चन इज वेरी टॉल एक्टर, कुछ भी आप बना सकते हैं इसका सेंटेंस। जैसे आप पर्सनली कह सकते हैं, माई फादर इज वेरी टॉल, माई मदर इज वेरी टॉल। ओके, इस तरीके से। ओके, तो फिर एक बार, वर्ड वाइज, माई फादर इज वेरी वाइज, केयरलेस, you are very careless, thick, thick and strong, Ravi is thick and strong, foolish, you are very foolish, and tall, कुछ भी कह सकते हैं कि I saw a person is very tall, I saw a tall person, मैं इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। ओके, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज, here are some answer about the given picture, इसमें एक पिक्चर दी है एंड इसमें कुछ कहा गया है पिक्चर के बारे में, देखें। फर्स्ट इज द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, जो आंट का कलर है वो ब्लैक है। सेकंड, इट लिव ऑन लैंड, लैंड पे रहती है, धरती पे। इट हैड टू लॉन्ग एंटीनेक, इसके दो लंबे एंटीनेक हैं। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, जमीन पे रेंगती है। इट ईट्स शुगर, और ये चीनी खाती है। तो नेम फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर, अब इनके क्वेश्चन बनाए। जैसे ऊपर तो आंसर हैं और आपको इन नीचे क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखें, द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ आंट, द कलर ऑफ आंट इज ब्लैक। व्हाट, वेयर डज इट लिव, इट लिव ऑन लैंड।
How many antelope does an ant have? It have two long. And next is where does it crawl? ये कहाँ रेंगती है? It crawl on the ground. एंड लास्ट में व्हाट डज इट ईट? ये क्या खाती है? इट इट सुअर. तो आंसर आपको हो गए. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई शैल डू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, हैव अ नाइस डे.